જેની મેમ હિરલ મેમ જોઈન થાય ને એટલે જરા કહેજો એટલે હું પેનલિસ્ટ બનાવી દઈશ હો.
Okay, good morning, everyone. Am I audible? જયની મેડમ સંભળાય છે? Yes, ma'am, you are audible. So sorry for inconvenience again. There is some technical issue and due to the some unavailability. Now we are going to start with our session 5 of the second day of GSPC sponsored 2 days refresher course organized by Sharda School of Pharmacy, Pethapur, Gandhinagar. Now we are going to start with our session. The speaker of our session is Ms. Jaini Patel. She is an associate professor at the Sharda School of Pharmacy in the pharmaceutics department. So we are not going to take a much more time with this. I request you, ma'am, to please start your session and delight us with your words. Yes, ma'am, please, you can share your screen and we will start with our session now. Good morning to all participants of refresher course. My screen is visible and am I audible? Yes, ma'am. Screen is already in a full mode. You are also audible and visible. So you can start, ma'am. Okay, thank you, ma'am. So myself, Jaini K. Patel, I am Associate Professor of the Sharda School of Pharmacy. In today's topic, I will explain medication error. I include types of medication error, what are the cause of the medication error, factor affecting medication error, how to prevent the medication error, and responsibility of the various authority to prevent the medication error. तो मेडिकेशन एरर क्या है उसको समझने से पहले हमें समझना चाहिए कि व्हाट इज मेडिकेशन. तो मेडिकेशन मीन्स एनी ड्रग और सब्सटेंस यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज लाइक पीसीएम, डाइक्लोफेनेक. एरर मीन्स हमने जो प्लान किया है वो एक्शन नहीं होता है और उससे अलग एक्शन जनरेट हो जाता है. तो व्हाट इज मेडिकेशन एरर? मेडिकेशन एरर इज अ कैरेक्टराइज एज medication error is a characterized as failure in the treatment process that leads to or has the potential to lead to harm to the patient. Medication error means any error in the prescribing, dispensing, administration of drug, irrespective of whether such error lead to adverse consequence or not. तो जो मेडिकेशन एरर है वो फिजिशियन से भी अराइज हो सकती है, फार्मासिस्ट से भी अराइज हो सकती है, नर्सिंग स्टाफ से भी अराइज हो सकता है और पेशेंट से भी अराइज हो सकती है. मगर जो उसका साइड इफेक्ट है ड्यू टू एरर, तो उसका जो बैड रिजल्ट है वो पेशेंट को ही सफर करना पड़ता है. नाउ नियर मिस मेडिकेशन एरर. तो नियर मिस मेडिकेशन एरर में क्या होता है कि अगर हमने देख लिया कि मेडिकेशन एरर अरेस्ट हो गई है तो उसको पहले ही डिटेक्ट कर देना है बिफोर रीच टू द पेशेंट. सच इवेंट इज आल्सो नोन एज अ नियर मिस मेडिकेशन एरर. epidemiology of medication error. So here in 1993 year, most of people in USA died due to medication error. Other than from motor vehicle accident, breast cancer or AIDS. Indian study of pediatric intensive care unit reported 68.5% of all errors were medication errors. Causes of medication errors: मिसिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन. फिजिशियन ने अच्छे से पेशेंट की हिस्ट्री नहीं ली है, पेशेंट की पूरी डिटेल शो नहीं की है, लाइक लेक ऑफ इंफॉर्मेशन है पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन में, लेक ऑफ कंसंट्रेशन एट द टाइम ऑफ प्रिस्क्राइबिंग प्रिस्क्रिप्शन, पुअर हैंड राइटिंग, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है एंड लेक ऑफ स्टाफ एजुकेशन है. प्रिस्क्रिप्शन जो है उसमें इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन,
यूज ऑफ एब्रीवेशन, एब्रीवेशन का जो यूज होता है तो उससे क्या होता है कि कंफ्यूजन अराइज होता है। ओरल और वर्बल ऑर्डर्स, ओरल और वर्बल ऑर्डर्स में क्या होता है कि समटाइम्स जो प्रिस्क्राइबर है तो प्रिस्क्राइबर फोन पे डिटेल पेशेंट को देता है और फार्मासिस्ट को भेजता है, तो उस टाइम में भी चांसेस बढ़ जाता है तो इंक्रीज मेडिकेशन एरर। लुक अलाइक, साउंड अलाइक ड्रग, रॉन्ग डोजेज कैलकुलेशंस, drug interaction in prescription, lack of computer decision support, lack of patient education, physician के पास updated knowledge नहीं होता है तब भी medication error arise होता है। poor communication with healthcare team, improper drug selection, unclear labeling of drug, problem in storage of the drug, परफॉर्मेंस प्रेशर, उसमें क्या होता है कि टारगेट कंप्लीट करना पड़ता है तो उस प्रेशर से भी एरर का चांसेस बढ़ जाता है। हियर मैंने एक चार्ट शो किया है, उसमें एरर को क्लासिफाई किया हुआ है कि एरर को जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया है, मिस्टेक्स और स्किल बेस्ड एरर। मिस्टेक में दो सब टाइप्स है, नॉलेज बेस्ड एरर एंड रूल बेस्ड एरर। नॉलेज बेस्ड एरर में क्या होता है कि पेशेंट को फिजिशियन को पता होना चाहिए कि बिफोर प्रिस्क्राइबिंग पेनिसिलिन चेक द whether patient is allergic to the penicillin or not. रूल बेस्ड एरर, रूल बेस्ड एरर में दो टाइप के रूल है, गुड रूल्स और बैड रूल्स। गुड रूल्स में क्या होता है कि गुड रूल्स अप्लाई नहीं किए जाते हैं तो उस टाइम पर रिजल्ट जो है वो रिजल्ट चेंज हो जाएगा, और बैड रूल्स में अप्लाई हो जाते हैं तो उस टाइम पे भी एरर अराइज होगा। एक्शन बेस्ड एरर्स, एक्शन बेस्ड एरर्स में क्या होगा कि डॉक्टर की जो पेन होती है और टेक्निकल एरर और एनी एरर से डॉक्टर लिखना चाहता है डीटी एग्जाम और डॉक्टर लिख देता है मेडिसिन डाइजेपा ड्यू टू स्लीप ऑफ पेन। मेमोरी बेस्ड एरर्स, तो ये एरर अभी ड्यू टू यूज ऑफ स्मार्टफोन ये एरर अभी ज्यादा राइज होती है, बिकॉज जब मोबाइल का यूज होता है तो हम भूल जाते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो we all are in healthcare team, so when we prescribe the prescription at the time of dispensing, at the time of administration, avoid the use of mobile to avoid the memory based errors। टाइप्स ऑफ मेडिकेशन एरर, तो उसमें फर्स्ट मेजर एरर इज द प्रिस्क्राइबिंग एरर, डिस्पेंसिंग एरर, एडमिनिस्ट्रेशन एरर्स एंड मिसलेनियस एरर्स। तो सभी एरर को हम वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। प्रिस्क्राइबिंग एरर, तो सबको पता ही है कि व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रिस्क्राइबर टू द पेशेंट फॉर फार्मासिस्ट। तो प्रिस्क्राइबिंग एरर ज्यादातर फिजिशियन से अराइज होती है कि फिजिशियन के राइटिंग अच्छे नहीं है, फिजिशियन जो है ओपीडी ज्यादा है तो हरी में प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया है, लुक अलाइक, साउंड अलाइक ड्रग का यूज किया है। प्रिस्क्रिप्शन एरर इज अ फेलियर इन द प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग प्रोसेस that result in a wrong instruction about one or more of the normal features of prescription. Normal prescription include various details like name of patient, history of the patient, route of administration, duration of administration, frequency, etc. Error in prescription can be divided into four parts. First is an irrational prescription and inappropriate prescription. Second is an ineffective prescription. Third is an under prescription, and four is an over prescription. And error in writing the prescription. Inappropriate और irrational prescription में क्या होगा, lack of information और incorrect information present होगी prescription में। इनइफेक्टिव प्रिस्क्रिप्शन में क्या होगा कि फिजिशियन ने ड्रग प्रिस्क्राइब कर ली है मगर जो ड्रग प्रिस्क्राइब की है वो डिजीज में अच्छे से एक्शन नहीं दे रही है। अंडर प्रिस्क्रिप्शन में ज्यादातर लो डोज ऑफ ड्रग प्रिस्क्राइब किया जाता है और ओवर प्रिस्क्रिप्शन सफरिंग विथ हायर डोज और एक्स्ट्रा डोज ऑफ मेडिसिन। तो एंटीबायोटिक का ओवर यूज हमें अवॉइड करना चाहिए। Other factor affecting to the prescription error: inaccurate history taking of the patient, incorrect drug selection for the patient, error arise in a quantity, prescribing of a contraindicated drug, use of abbreviation,
पुअर हैंडराइटिंग, यूज ऑफ वर्बल ऑर्डर्स, वर्क एनवायरमेंट जो होता है उससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम अराइज होते हैं और मेडिकेशन एरर अराइज होती है। डेसिमल एरर में क्या होता है कि फिजिशियन ने 0.5 मिलीग्राम डोज प्रिस्क्राइब किया है और ड्यूरिंग द डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट ने रीड कर दिया 5 मिलीग्राम, तो इससे फिर डेंजरस एरर अराइज होगा। नो डायग्नोसिस, पेशेंट का अच्छे से डायग्नोसिस नहीं किया हुआ है, रॉन्ग पेशेंट इंफॉर्मेशन, not counseling to the patient because of lack of time, communication gap within the team, not well-being, physical and mental health, lack of knowledge, organization factor means organization जो है उन्होंने proper facility provide नहीं की है, like a computer system etc, and absence of self awareness। इलिजिबल हैंड राइटिंग, तो जो फिजिशियन के हैंड राइटिंग है एट द टाइम ऑफ प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन इन प्रिस्क्रिप्शन वो ज्यादा मैटर करते हैं। हियर मैंने एक एग्जांपल शो किया हुआ है बैड प्रिस्क्रिप्शन, तो उसमें लिखा हुआ है a hypertensive patient accidentally received Ventin 200 milligram instead of Vasotec 20 milligram when a pharmacist misread the prescription। तो मेडिसिन पूरी चेंज हो जाएगी और उससे एरर अराइज होगी। रॉन्ग ड्रग एंड रॉन्ग रूट इंटरेक्शन, तो उसमें फर्स्ट है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। फिजिशियन ने वर्फेरिन के साथ सैलिसाइलेट प्रिस्क्राइब कर दिया है तो इससे रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इंक्रीज हो जाएगा। नाइट्रोग्लिसरीन के साथ सिल्डेनाफिल ड्रग प्रिस्क्राइब की है तो उससे रिस्क ऑफ हाइपोटेंशन अराइज होगा। डुप्लीकेटिव थेरापी, तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट इज ऑलरेडी टेकिंग मेटोप्रोलोल ड्रग और फिजिशियन ने अटेनोलोल प्रिस्क्राइब कर दिए, तो दोनों ड्रग एंटी हाइपरटेंसिव है। रॉन्ग डोजेज एरर में क्या होता है कि फिजिशियन ने जस्ट पीसीएम प्रिस्क्राइब कर दिया है, उसके साथ में डोजेज फॉर्म नहीं बताया और हमें सबको पता ही है कि पीसीएम के सारे डोजेज फॉर्म अवेलेबल है, तो इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द प्रॉपर डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिसिन। रॉन्ग रूट एरर इज अ मेजर एरर, सीरियस एरर, इससे हैजार्डस अराइज होता है और डेथ भी हो सकती है। कि लाइक सस्पेंशन है, सस्पेंशन प्रोकेन पेनिसिलिन जी सस्पेंशन, तो उसको इंट्रामस्कुलर रूट से देना है और ड्यू टू बाय मिस्टेक उसको आईवी एडमिनिस्ट्रेशन रूट से एडमिनिस्टर करते हैं, तो इट इज द एग्जांपल ऑफ रॉन्ग रूट एरर। प्रिंसिपल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तो सबसे पहले जो पेशेंट है तो पेशेंट की पूरी इंफॉर्मेशन हमें लेनी है, उसका नाम वेरीफाई करना है, पेशेंट का अच्छे से डायग्नोसिस करना है और वो प्रिस्क्रिप्शन में लिखना है। तो पेशेंट अगर दूसरे फिजिशियन के पास जाता है तो उससे पता चले कि पेशेंट का क्या डायग्नोसिस हुआ, क्या डिजीज है। राइट ड्रग, सिलेक्शन ऑफ राइट ड्रग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, वैसे इंडिया में कोस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो हमें मेडिसिन पेशेंट के हिसाब से सिलेक्ट करनी है, मगर उसकी हेल्थ जो है तो हेल्थ क्योर हो उस हिसाब से सिलेक्ट करनी है। राइट डोज, और राइट डोज के लिए हमें अपडेटेड रहना है, नॉलेज सब लेना है, सेमिनार है या कोई आर्टिकल है। राइट फ्रीक्वेंसी, उसमें हमें अच्छे से मेंशन करना है कि मेडिसिन को दिन में कितनी बार देना है। इट इज बेस्ड ऑन हाफ लाइफ। राइट रूट, राइट एडवाइस, पेशेंट को पूरी इंफॉर्मेशन बतानी है, पूरी इंस्ट्रक्शन बतानी है कि ये मेडिसिन मॉर्निंग में लेनी है, ये मेडिसिन आफ्टरनून में लेनी है, विथ फूड लेनी है, विदाउट फूड लेनी है। स्टार्ट विथ लो डोज एंड गो स्लो, अवॉइड पॉलीफार्मेसी, तो इसमें ज्यादातर 2-4 पूरी बहुत सारी मेडिसिन पेशेंट को नहीं देनी है एक साथ, इससे क्या होगा कि ड्रग ड्रग इंटरेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा। अप्रोचेस टू रिड्यूस द प्रिस्क्राइबिंग एरर, तो अभी स्मार्ट युग चल रहा है, स्मार्ट युग में हमें पता ही है कि स्मार्ट लैपटॉप इज अवेलेबल, स्मार्ट वॉचेस इज अवेलेबल, स्मार्ट टीवी अवेलेबल, वैसे ही हमारा ये स्मार्ट प्रिस्क्रिप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन। इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन का जब हम यूज करते हैं तो उससे प्रिस्क्राइबिंग एरर जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन इज ऑटोमेटिक जनरेटेड प्रिस्क्रिप्शन, तो उसमें डेट है, टाइम है, नेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो डिटेल आ जाती है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होता है। अगर हमने आगे से डेटा उसमें स्टोर किया हुआ है तो ड्रग का जो डोज है, ड्रग की एलर्जी है,
उसका जेनरिक नेम क्या है वो सब भी वो शो कर देता है, ड्रग इंटरेक्शन की वार्निंग भी हमें पता चल जाती है, इंश्योरेंस कवरेज का भी डिटेल मिलता है, और अगर हमने पास्ट प्रिस्क्रिप्शन को भी सेव किया हुआ है तो पास्ट मेडिसिन का भी हमें पता चलता है। Computerized system. Computerized system is also generate automatic prescription. It also reduce the prescribing error, dispensing error. Here is the example of the computerized generated prescription. इसमें हम देख सकते हैं कि डोजेज फॉर्म क्या है, किस रूप से लेना है, कितने टाइम लेना है, किस डेट पे प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो इससे जो पुअर हैंडराइटिंग वाला ऑप्शन है वो सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन। Second major error is a dispensing error. Now पेशेंट के पास प्रिस्क्रिप्शन आ गया है, पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन को लेकर फार्मासिस्ट के पास आएगा, फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से रीड किए बिना ही डिस्पेंसिंग स्टार्ट कर देता है, तो उस टाइम पर जो एरर अराइज होती है उसको हम डिस्पेंसिंग एरर बोलते हैं। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं कि लाइक ड्रग स्टोर है उसमें हमने अच्छे से लेबलिंग नहीं किया है, drug that have a similar name or appearance, wrong drug or wrong patient due to increased rush to pharmacies. Look alike and sound alike drug. तो उसमें क्या होता है कि लाइक हियर मैंने दो टैबलेट शो की है, वन इज अ गाबा पेंटिन टैबलेट एंड सेकंड इज अ जेम फाइब्रोसिल टैबलेट। तो दोनों टैबलेट की स्ट्रेंथ सिमिलर है, पैकेजिंग सिमिलर है, और जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है वो भी सिमिलर। तो इस टाइम पर जो फार्मासिस्ट है तो उसको दो टाइम प्रोडक्ट का लेबल चेक करना है और उसके बाद ही डिस्पेंस करना है। वैसे सेकंड एग्जांपल है सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड क्लैरिथ्रोमाइसिन। साउंड लाइक ड्रग, तो उसमें क्या लगता है कि ड्रग का जो साउंड होता है, दो ड्रग डिफरेंट है मगर उसका साउंड एक जैसा लगता है, लाइक फोलिक एसिड फोलिनिक एसिड, सल्फासालाजिन एंड सल्फाडाइजिन, ट्रामाडोल एंड ट्राजाडोल, पिटावास्टेटिन एंड प्रावास्टेटिन, डेक्सामिथासोन एंड डेक्स्ट्रोमिथोफेन, ज़ेंटेक एंड ज़ेनेक। एग्जाम्पल ऑफ डिस्पेंसिंग एरर, हियर मैंने एक एग्जाम्पल शो किया है, उसमें फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया है प्राइमीडोन ड्रग फॉर सीजर ऑर्डर, प्राइमीडोन ड्रग फॉर 12 years old boy with a seizure disorder। ड्यू टू पुअर हैंड राइटिंग ऑफ फिजिशियन, फार्मासिस्ट ने मिस्टेक से रीड कर दिया है प्रेडनिसोन। For 4 months, the boy received prednisone along with his seizure medication, causing steroid-induced diabetes. The diabetes goes under unrecognized and he dies from diabetic ketoacidosis because the drug was look-alike, sound-alike drug that lead to dispensing error. Various dispensing error like look-alike, sound-alike drug, use of incorrect strength, use of incorrect dosage form, missing the dose, omission error, documentation error, technical error। ये डिस्पेंसिंग एरर को हम प्रिवेंट कैसे करेंगे? तो हमारे पास बहुत लंबा ड्रग स्टोर है, तो पहले वो मेडिकल स्टोर है तो उसमें सभी प्रोडक्ट की जो अरेंजमेंट है वो हम अच्छे से करेंगे। लुक लाइक और साउंड लाइक जो ड्रग है तो उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे कि उस पे अलर्ट लेबल लगाएंगे, फिर उसके कोई कलर लगाएंगे कि जिससे वो मिक्स ना हो। टॉलमैन का भी हम यूज करेंगे कि लाइक हियर मैंने एग्जांपल शो किया हुआ है सिसप्लेटिन एंड कार्बोप्लेटिन, तो दोनों में प्लेटिन वर्ड इज अ सिमिलर एंड डिफरेंशिएट cis and carbo by using Tolman. Compare the content of medication container with the information on the prescription, creating awareness during dispensing of medicine, maintain minimum workload at a safe and manageable level, and use a safe systematic procedure for dispensing of medication। और जब भी हम मेडिसिन को डिस्पेंस करते हैं तो दो टाइम प्रिस्क्रिप्शन को भी चेक करना है और प्रोडक्ट को भी चेक करना है, उसके बाद ही उसको डिस्पेंस करना है। Now third major error is the administration errors। एडमिनिस्ट्रेशन एरर कब अराइज होती है कि लाइक पेशेंट ने ड्रग रिसीव कर ली है और फार्माकोलॉजिकल एक्शन स्टार्ट होती है, तो उस बीच में जो एरर अराइज होती है उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन एरर बोलते हैं।
तो उसमें भी बहुत सारी एरर है, लाइक रॉन्ग रूट एरर, रॉन्ग डोज एरर, रॉन्ग डोसेज एरर, रॉन्ग टाइम एरर, एक्स्ट्रा डोज एरर, यूज ऑफ इनकरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपायरी प्रोडक्ट, कोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एरर। तो उसमें जो शायद पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है तो उस टाइम पर नर्स उसको मेडिसिन एडमिनिस्टर करती है, तो नर्स के पास नॉलेज नहीं है तो उस टाइम पे भी ये एरर अराइज होगी। लेक ऑफ अवेलेबल टेक्नोलॉजी, फिर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका भी नॉलेज नहीं है तो उस टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन एरर अराइज होगी। तो उसमें हम वन बाय वन सब एरर देखते हैं कि फर्स्ट एरर इज ओमिशन एरर। ओमिशन एरर में क्या होता है कि फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि ये टैबलेट दिन में 3 टाइम लेनी है और पेशेंट क्या करता है, वो टैबलेट दिन में 2 टाइम ही लेता है और 1 डोज जो होता है वो ओमिट कर देता है। Omitted dose is not an error when patient cannot take anything from mouth. तो उस टाइम पर जो नर्सिंग स्टाफ है, हॉस्पिटल स्टाफ है, उसको ही अच्छे से केयर करना है। प्रोवाइडर्स आर वेटिंग फॉर ड्रग लेवल, लेबोरेटरी डेटा रिजल्ट्स, पेशेंट रिफ्यूजेस। तो पेशेंट को हमें बोलना है कि ये आपके अच्छे के लिए यूज हो रहा है। रॉन्ग टाइम एरर, रॉन्ग टाइम एरर में क्या होता है कि पेशेंट को मेडिसिन लेना अच्छा नहीं लगता है, हमको भी अच्छा नहीं लगता है, और फिजिशियन ने बोला है कि ये मेडिसिन 3 टाइम लेनी है, 1 इन अ मॉर्निंग, 1 इन अ आफ्टरनून एंड 1 इन अ नाइट। तो उस टाइम पर पेशेंट क्या करता है कि मेडिसिन को स्टार्ट दोपहर में ही करता है। तो दोपहर में एक मेडिसिन लेगा, इवनिंग में एक मेडिसिन लेगा और नाइट में लेगा, तो उससे टाइम की एरर अराइज होती है। अनऑथराइज्ड ड्रग एरर, अनऑथराइज्ड ड्रग एरर में क्या होता है कि फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब की है पीसीएम टैबलेट और पेशेंट ले रहा है दूसरी टैबलेट, मींस टेकिंग ऑफ मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्राइबिंग इन अ प्रिस्क्रिप्शन। Administration of drug patient without proper authorization by prescriber, medication for particular patient administered to another patient, nursing staff administered drug without order of prescriber, patient do set prescription sometimes। इम्प्रॉपर डोज एरर, इम्प्रॉपर डोज एरर में क्या होता है कि जो करेक्ट डोज लेना है वो हम नहीं लेते और लेस और ज्यादा डोज का यूज हो जाता है। उसमें अगर फार्मासिस्ट ने भी प्रिस्क्रिप्शन अच्छे से रीड नहीं किया है तो उस टाइम पे भी ये एरर अराइज हो जाती है। इसमें मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया है 0.5 मिलीग्राम डोज ऑफ वरफेरिन और 5 मिलीग्राम वरफेरिन पेशेंट को एडमिनिस्टर किया जाता है। ये डोज एरर ज्यादातर ओरल लिक्विड में यूज होती है कि अगर पेशेंट जो है वो मेजरमेंट वाला जो कंटेंट क्लोजर है वो यूज नहीं करता है और स्पून यूज करता है, तो सबके घर में स्पून अलग अलग रहती है तो इससे एरर अराइज होती है। रॉन्ग डोजेज फॉर्म एरर, रॉन्ग डोजेज फॉर्म एरर में क्या होता है कि लाइक आगे भी मैंने एक एग्जांपल शो किया हुआ था पीसीएम का। तो लाइक अभी रिसर्च का बहुत सारे होते हैं तो उसमें जो मेडिसिन, जो रूटीन यूज की जो मेडिसिन है तो उसके सारे डोजेज फॉर्म जनरली अवेलेबल होते हैं, तो जो डोजेज फॉर्म लेना है वो नहीं लिखा होता है और लिखा होता है तो भी पेशेंट जो है और नर्स जो है वो पेशेंट को दूसरा डोसेज फॉर्म एडमिनिस्टर कर देते हैं, तो उस टाइम पर रॉन्ग डोसेज फॉर्म एरर अराइज होगा। लाइक आगे हमने देखा एग्जांपल कि पीसीएम टैबलेट लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन में और पेशेंट पीसीएम कैप्सूल यूज कर रहा है। ड्रग एडमिनिस्टर इज a different form than order, हाइफेनिक इंस्टेड ऑफ हाइफेनिक एसिड। तो इसमें अभी हम सबको पता ही है कि टैबलेट अवेलेबल एज अ डिफरेंट फॉर्म लाइक कन्वेंशनल टैबलेट, सस्टेंड रिलीज टैबलेट, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट। तो इसमें लिखना है कि वो कौन सी टैबलेट लेनी है, हाइफेनिक कन्वेंशनल लेनी है या हाइफेनिक एसिड लेनी है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट व्हेन आई ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब, रॉन्ग डोज प्रिपरेशन। तो उसमें क्या होता है कि सम टाइम एंटीबायोटिक पाउडर प्रिस्क्राइब किया जाता है और उसके साथ वाटर फॉर इंजेक्शन भी देते हैं, तो उसमें जो वॉल्यूम लिखा है वो वॉल्यूम यूज करके हम डाइल्यूशन नहीं करते और वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, तो उस टाइम पर रॉन्ग डोज प्रिपरेशन अराइज होगी। यूजिंग सलाइन इंस्टेड ऑफ स्टेराइल वाटर टू रिकंस्टिट्यूट द लायोफिलाइज पाउडर फॉर इंजेक्शन,
लायोफिलाइज का मतलब क्या होता है? लायोफिलाइज पाउडर इट मीन स्टेराइल पाउडर, और उसको लायोफिलाइजर फ्रीज ड्रायर इंस्ट्रूमेंट से प्रिपेयर किया जाता है। इनकरेक्ट डाइल्यूशन और रिकंस्टिट्यूशन, मिक्सिंग ऑफ ड्रग दैट आर विजुअली और केमिकली इनकम्पेटिबल। रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक, तो सबको पता ही है कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो रहता है तो उसको सबक्यूटेनियस टिश्यू में एडमिनिस्टर करना होता है, तो उसकी जगह पर वो टू डीप इंजेक्ट हो जाता है। पेशेंट को इन्फेक्शन है राइट आई में, और आई ड्रॉप जो है वो लेफ्ट आई में इंस्टिल किया जाता है, तो उस टाइम पे भी रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक के एरर अराइज होगी। डिटेरियोरेटेड ड्रग एरर, फिर जब भी हम स्ट्रिप लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं और उसको डिस्पेंस करना होता है, तो उस टाइम पर उसकी एक्सपायरी डेट हमें 2 बार रीड करना है, उसके बाद ही उसको डिस्पेंस करना है। और सबको पता ही है कि मेडिसिन जब प्रिस्क्राइब होती है तो उसमें लेबल रहता है कि उसको कहाँ पे स्टोरेज करना है। लाइक सपोजिटरी शुड बी स्टोर इन अ रेफ्रिजरेटर। अगर पेशेंट के पास नॉलेज नहीं है और पेशेंट ने सपोजिटरी रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ दी है, तो उसमें क्या हो जाएगा? मेल्टिंग हो जाएगा। फिर सम एंटीबायोटिक पाउडर को जिसको फ्रीज में रखना होता है और उसको रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं, तो उसमें स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम अराइज होता है, प्रोडक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो चेंज हो जाती है। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एरर्स, तो पहला फैक्टर है कि पेशेंट की हिस्ट्री प्रॉपर नहीं ली हुई है। सेकंड, एनवायरमेंटल फैक्टर, फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है, नॉइज है, लाइटिंग फैसिलिटी नहीं है, रॉन्ग कैलकुलेशन टू डिटरमाइन द करेक्ट डोज। Other factors are like lack of available technology, lack of knowledge of preparation and administration process, and storage of look-alike and sound-alike drug in single tolly without differentiation with label or tollman. मिसेलिनियस एरर को 2 पार्ट में, हमारी फोर्थ एरर है मिसेलिनियस एरर, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, मॉनिटरिंग एरर और कंप्लायंस एरर। मॉनिटरिंग एरर में क्या होता है कि फिजिशियन ने बोला है पेशेंट को कि ब्लड टेस्ट करवा दो, सीरम टेस्ट करवा दो, और वो टेस्ट आए तो उसको बिना रीड किए उसके पहले ही पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते, और फिर रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट का रिव्यू नहीं होता है, तो उस टाइम पर मॉनिटरिंग एरर उसको बोलते हैं। तो हियर इज द एग्जांपल इज अ प्रिस्क्राइबिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एंड फेलिंग टू मॉनिटर ब्लड प्रेशर। कंप्लायंस एरर में क्या होता है कि मेडिसिन होती है ये बीटर, और पेशेंट को बताया नहीं है फिजिशियन ने कि ये मेडिसिन लेने के बाद उसका मेटालिक टेस्ट अराइज होगा, और पेशेंट क्या करता है कि बीच में ट्रीटमेंट स्टॉप कर देता है। तो इस टाइम पर फिजिशियन को अच्छे से पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देनी है कि ये मेडिसिन आप लोगे तो उसका मेटालिक टेस्ट अराइज होगा, मगर आपको इसका जो कोर्स है वो कंप्लीट करना है, बीच में से स्टॉप नहीं कर देना है। Example is a metallic test with metronidazole. Second, to save few doses and thereby save money, patient does not complete entire course of antibiotic or other medicine. तो पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है फिजिशियन ने कि ये मेडिसिन 6 दिन तक लेनी है, और पेशेंट 3 दिन में क्योर हो जाता है, तो वो क्या करेगा कि मेडिसिन को बीच में स्टॉप कर देगा ड्यू टू कोर्स फैक्टर, मगर ऐसा नहीं करना है, कंप्लीट कोर्स करना है मेडिसिन का। स्विस चीज मॉडल, तो इसमें चीज का यूज करके हमें बताया है कि एरर कैसे अराइज होगी और एरर से पेशेंट में कैसे प्रॉब्लम अराइज होगी। पिक्टोरियल मॉडल फॉर मेडिकेशन एरर्स, डिफेंस अगेंस्ट एरर डिस्प्ले एज थीन लेयर with holes that describe latent error in system. Each layer successfully represent the prescriber, pharmacist, nurse, and patient-related defenses. Miss error successively at various defense level reach the patient. अभी हम वो चीज मॉडल जो है वो चीज मॉडल से हम देखेंगे कि क्या कहना चाहता है हमारा चीज मॉडल। तो स्विस चीज मॉडल में आप देख सकते हो कि चीज के 3 लेयर लगाए गए हैं, उसमें होल डाले हुए हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि टॉप साइड डिफेंसिस है,
तो जब भी मेडिकेशन एरर अराइज होती है तो फिजिशियन उसको कैसे प्रिवेंट करेगा, फार्मासिस्ट, अगर फार्मासिस्ट का रोल है तो फार्मासिस्ट कैसे प्रिवेंट करेगा, पेशेंट से ये हो रहा है तो पेशेंट कैसे उसको प्रिवेंट करेगा। तो ये सारे डिफेंस फैक्टर है, रोल ऑफ फिजिशियन, रोल ऑफ फार्मासिस्ट, रोल ऑफ पेशेंट, और हियर आर द फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेडिकेशन एरर, लाइक सिस्टम अच्छी नहीं है, कोई लेक ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो ये सारे फैक्टर है। हॉल क्या इंडिकेट कर रहे हैं, हॉल जितने ज्यादा उतनी हमारी सिस्टम पुअर यानी वीकनेस ज्यादा, उतनी मेडिकेशन एरर ज्यादा बता रहे हैं। और जितने हॉल ज्यादा हो गए तो उसका सारा रिजल्ट जो है, साइड इफेक्ट जो है ड्यू टू मेडिकेशन एरर, वो पेशेंट को ही सफर करनी पड़ेगी। एक्शन टू बी taken when error occurs। तो हमें लगता है कि लाइक हॉस्पिटल है या कहीं भी हमें लगता है कि मेडिकेशन एरर अराइज हुई है तो हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्लाइंट की सेफ्टी देखनी है, उसके बाद एक रिपोर्ट बनाना है, उस रिपोर्ट में सारी डिटेल डालनी है, और ये जो रिपोर्ट है इससे इंस्टीट्यूट का भी प्रोटेक्शन होगा। The nurse assess and examines the client's condition and notify the physician of the incident as soon as possible. Once the client is stable, the nurse should fill the report of the incident. And incident report usually must be filled within 24 hours of an incident. The nurse is also responsible to submit the report of the incident to the appropriate person in the institution, like nursing supervisor or nursing manager. Incident report including client detail, location of incident, time of the incident, and detailed description of incident, signature of person present at the time of incident. This is to legally protect the healthcare professional and institution. It is a good risk management to report all medication error, including mistakes that do not cause any harm. अदर फैक्टर टू रिड्यूस मेडिकेशन एरर, तो उसमें हमें पता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन है वो 2-3 टाइम रीड करना है बिफोर डिस्पेंसिंग, लेबल को अच्छे से रीड करना है, मेडिसिन जो है वो वेल लाइट में प्रिपेयर करनी है, लुक अलाइक साउंड अलाइक जो ड्रग है उसको अलग से स्टोर करना है, प्रिस्क्रिप्शन में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वर्बल ऑर्डर को अवॉइड करना है, अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो उसमें वो सही है, अगर पेशेंट को एलर्जी है तो उसको चेक करके ही मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना है, डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से मेंटेन करना है, और स्टे अपडेटेड विद करंट स्टेट ऑफ नॉलेज। 6-step approach by World Health Organization for good prescribing. First approach is a patient की हिस्ट्री जो है, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है वो अच्छे से डिफाइन करना है, स्पेसिफाई थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव्स। Third, select appropriate drug therapy, prescribing drug, prescriber drug and steps approach like maintain safety, efficacy, price, simplicity, tolerability. Initiate therapy with appropriate details, give information, instruction and warning, evaluate therapy regularly. रोल ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज, तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज का मेन रोल होता है कि जो मेडिकेशन एरर हो तो वो रिड्यूस हो जाए, तो उसके लिए एफडीए जो है, तो एफडीए ने इंडस्ट्री को भी अवेयर किया हुआ है कि लेबल अच्छे से मेंटेन करे, फिर पब्लिक के लिए भी सब प्रोग्राम अरेंज करती है कि जिससे पब्लिक को भी पता चले कि कैसे मेडिकेशन का यूज करना है, कैसे एरर को प्रिवेंट करना है। रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसमें भी फैसिलिटी सब डेवलप करनी है कि लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद उसमें सब डिटेल इंस्टॉल करनी है, लाइक लुक लाइक साउंड लाइक ड्रग। FDA encourages pharmacists and other health professional to report any medication error. Role of prescribers, तो प्रिस्क्राइबर जब भी प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो उस टाइम अवेयरनेस, पूरी अवेयरनेस के साथ प्रिस्क्रिप्शन लिखना है, तो डॉक्टर शुड हैव अ नॉलेज ऑफ जेनरिक नेम एंड ब्रांड नेम्स ऑफ अवेलेबल ड्रग इन देयर लोकल सेटिंग,
Physicians should specify dosage form, drug strength, and complete direction of prescription. Physicians should prescribe both brand name and generic name on prescription. Physicians should also write purpose of medication. Prescribers should avoid use of abbreviation. Role of pharmacist. अगर पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन लेकर फार्मासिस्ट के पास आता है और अगर उसमें कोई कंफ्यूजन है तो डायरेक्ट कांटेक्ट टू दी डॉक्टर करना है और ऐसे डिस्पेंस नहीं कर देना है। और उस टाइम पर जो फार्मासिस्ट के एक्सप्रेशन है वो चेंज नहीं होने चाहिए। और फार्मासिस्ट जो है, फार्मासिस्ट को भी सभी जेनरिक ड्रग, ब्रांडेड ड्रग, लुक लाइक, साउंड लाइक ड्रग का नॉलेज होना चाहिए। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है तो उसको भी पेशेंट को देना है। कंप्यूटर का यूज करके कंप्यूटर रिमाइंडर फॉर सीरियस कंफ्यूजिंग नेम पेयर्स टू अवॉइड एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन। रोल ऑफ नर्सिंग स्टाफ. The nursing staff should have education and proper training important in reducing medication related errors. Most errors do not reach patient because of barrier role play by a nurse. तो नर्सिंग स्टाफ का भी इम्पोर्टेंट रहता है। हॉस्पिटल में जब पेशेंट एडमिट होता है तो ज्यादातर मेडिसिन जो है वो नर्स ही एडमिनिस्टर करती है, तो नर्स को भी पूरा नॉलेज होना चाहिए। और वो नहीं होता है तो ट्रेनिंग प्रोग्राम और कोर्स से उसको जेनरिक ड्रग क्या है, ब्रांड ड्रग क्या है, वो सब नॉलेज उसको देना चाहिए। पेशेंट एंड फिजिशियन एजुकेशन. Regular short courses and training to junior residents by academic institution for good prescription writing practices. Prescribers should also consider age of patient, any physical disability, weak eyesight before prescribing. Patient educated regarding correct use of prescription and over-the-counter medicines. पेशेंट फिजिशियन के पास गया है और प्रिस्क्रिप्शन में उसको डाउट लग रहा है आफ्टर प्रिस्क्राइबिंग बाय फिजिशियन, तो डायरेक्टली डॉक्टर का कांटेक्ट करके उस टाइम पर ही जो कंफ्यूजन है वो दूर करनी है। पेशेंट शुड एजुकेटेड अबाउट द स्टोरेज कंडीशन ऑफ स्पेसिफिक ड्रग. पेशेंट शुड हैव नॉलेज हाउ टू कीप मेडिसिन अवे फ्रॉम रीच ऑफ चिल्ड्रन. Patient should carry all previous prescription to avoid repeating the drug or notice any change in prescription. Thank you all. Video start. Thank you so much, madam. Thank you so much, Jenny madam, for giving good and easy understanding information about medication error, different types of medication error, and how to prevent with different examples. And what is the role of pharmacist to prevent the this type of error? Thank you so much, madam. Any questions? Yes, participants, any questions related to this topic? Okay, madam. Okay, thank you all participants. Now I would request to leave this meeting and join another link for next session. Kindly please leave the meeting, all participants, and join another link.